بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، آج 29 جولائی ہے اور دن ہے پیر کا۔ 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ چوری کرنے کا معاملہ ہو یا 12 جولائی کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا معاملہ ہو، جس ایک شخص کا بچنا پہلے دن سے ناممکن لگ رہا تھا وہ ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا، عملاً یہ کرنا ناممکن ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سمیت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام ممبران کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں قوم کے سب سے بڑے مجرم، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا 8 فروری کی رات، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے، جان بوجھ کر غلط تشریح کر کے مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے چھینی، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 12 جولائی کو فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں، اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا اندیا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک دفعہ پھر چھا گئے ہیں۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ دیا تھا، جس میں 8 ججز نے، 13 رکنی فل کورٹ بینچ تھا، 8 ججز نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ 15 روز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 41 اراکین قومی اسمبلی اپنے بیان حلفی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائیں۔ 15 روز کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام تر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے کون سی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نیو یارک سٹی بار کونسل میں ایک خطاب کیا تھا۔ اس خطاب کے دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا، یعنی مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کے تناظر میں ہی یہ سوال ہوا تھا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کیونکہ ماضی میں یہ ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 14 مئی کو 2023، یعنی یہ 2023 کی بات ہے، 14 مئی 2023 کی تاریخ بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی، لیکن سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کچھ دن پہلے نیو یارک سٹی بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو آزاد اور آئین پسند ججز ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، ان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ججز اپنے فیصلے کے اوپر پہرا دیتے ہیں، ججز اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب یہ بات کہی تھی نیو یارک سٹی بار کونسل میں، اسی دن یہ طے ہو گیا تھا کہ کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے تھے، ہر صورت میں کوشش کی جا رہی تھی کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے، آئینی ترمیم ہو جائے، یعنی چیف الیکشن کمشنر وہ درمیانی راستہ ڈھونڈ رہے تھے جس راستے پر چل کر اس فیصلے کو ڈیلے کیا جا سکے۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا یہ پورا پلان ناکام بنا دیا، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے اوپر توہین عدالت لگ گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا توہین عدالت، اور یہ صرف توہین عدالت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر نہیں لگے گی، یہ تمام تر ممبران سیکٹری لا، یعنی وہ تمام لوگ جو اس فیصلے سے منسلک ہیں، ان کے اوپر توہین عدالت لگے گی۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سمپل ہے۔ 15 روز کا ٹائم دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ 12 جولائی یعنی جمعے والے دن یہ فیصلہ آیا تھا، آگے آ گیا ہفتہ اور اتوار، یعنی ہفتہ اور اتوار کے علاوہ 15 روز کا ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا، اور بڑا سمپل فیصلہ تھا 8 ججز کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 39 لوگ جنہوں نے
ऑलरेडी अपना बयान हल्फी जमा करवाया हुआ है, उनको फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, 41 लोगों के 15 रोज के अंदर बयान हल्फी लिए जाएं और फिर उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आधा फैसला माना, आधा फैसला नहीं माना। 39 लोगों को मखसूस नशिस्तें दे दी, बाकी 41 के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया और जाकर कहा कि हमें इस फैसले की समझ नहीं आई, जरा इस्लाह कर दीजिए, जरा इस फैसले की डिटेल्ड तशरीह कर दीजिए। अब जिन 8 जजेस ने, जिन 8 मुतफिका जजेस ने यह फैसला दिया था कि ये तमाम तर सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, वो तो गर्मियों की छुट्टियों पर हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैम्बर वर्क नहीं कर रहे, वो तो अपने अपने घरों को जा चुके हैं, या उनमें से कुछ जजेस बैरून मुल्क जा चुके हैं। तो वो जज साहब जिन्होंने इस फैसले को तहरीर किया था और जिन्होंने इस फैसले को सुनाया था, यानी इस फैसले के जो ऑथर जज हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अपना चैम्बर वर्क कर रहे हैं, वो छुट्टियों पर नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस मामले को टेकअप कर लिया। अब जाहिर है इसके लिए कोई बाकायदा समात नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई नजरसानी दरखास्त नहीं दायर की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए दरखास्त दी है ना, वो सिर्फ ये है कि हमने 39 लोगों को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आधा हुक्म मान लिया है, बाकी हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी तशरीह कर दें, हमारी इस्लाह कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सेक्रेटरी लॉ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डीजी लॉ, जितने भी लोग हैं कानून से मुंसलिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानूनी मामला देखते हैं, उनको बुलाया और कहा कि बताइए आपको क्या समझ नहीं आ रही। सिंपल फैसला है, 41 लोग जब अपना बयान हल्फी जमा करवा देंगे तो उनको हर सूरत में मखसूस नशिस्तें मिल जानी चाहिए। अब एक बात जो पहले दिन से हर जगह पर गर्दिश कर रही है, और वो तमाम तर साफी जो नून लीग की हुकूमत के करीब साफी समझे जाते हैं, बड़े बड़े, आप उनमें मंसूर अली खान देख लीजिए, सलीम साफी देख लीजिए, तल्लत हुसैन देख लीजिए, तमाम साफी पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर तौहीन अदालत लगाने के लिए तैयार बैठी है। वो जो 8 जजेस है ना, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस में अब गुस्सा पाया जाता है, यानी वो इंतजार कर रहे हैं कि 15 दिन मुकम्मल हो जाए। वो 15 दिन कब मुकम्मल होते हैं? आज 29 जुलाई है, पीर का दिन है, आज से ठीक एक हफ्ते बाद, क्योंकि 12 जुलाई को इस केस का फैसला आया था, आगे जुम्मा हफ्ता और इतवार आ गया, पीर वाले दिन एक अदालती दिन था, फिर मंगल और बुध वाले दिन 9वीं 10वीं मुहर्रम की छुट्टी आ गई। उस दिन में सिर्फ 3 दिन हफ्ते में काउंट होंगे, अदालती 3 दिन काउंट होंगे। उसके बाद से लेकर तकरीबन 2.5 हफ्ते यानी 6 अगस्त तो जो है वो 15 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 लोग हैं, 41 जो मेंबरान हैं, उनके तो बयान हल्फी रेडी हैं। ऐन मुमकिन है वो 5 अगस्त को अपने बयान हल्फी जमा करवाएं और हर सूरत में 6 अगस्त को यानी एक दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ को तमाम तर मखसूस नशिस्तें देना पड़े। यह नामुमकिन बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। यानी इस्लामाबाद के अंदर यह खबर गर्दिश कर रही है कि वो 8 जजेस जो इस टाइम छुट्टियों में हैं, उनमें सिर्फ मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं। मंसूर अली शाह साहब ये तशरीह कर देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस्लाह भी कर देंगे। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बयान हल्फी लेकर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना दी तो हर सूरत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और यह दोबारा केस की समाअत नहीं होगी। यह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया ना 12 जुलाई वाले दिन, इसी फैसले को तौहीन अदालत का नोटिस समझा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 अगस्त के बाद दोबारा केस की समाअत शुरू हुई, दोबारा नोटिस होंगे। इस फैसले को ही नोटिस समझा जाएगा और 7 या 8 अगस्त को सिकंदर सुल्तान राजा साहब तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाएंगे। और उसका मतलब यह है कि तौहीन अदालत का मुर्तकिब होने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी, सीधा सीधा गिरफ्तारी। और 8 फरवरी के इंतखाबात में जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या जितना भी बिगाड़ पिछले 5-6 महीनों के अंदर या उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में आया, जिसके सबसे बड़े और अहम किरदार खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, उनसे मैंडेट छीना गया, फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना। यानी जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर सकता था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस 6 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं कि आप एक दफा जो है वो 7 अगस्त आने दीजिए। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर सबसे तगड़ा आर्टिकल 6 का केस तो ये है जो उन्होंने 90 रोज के अंदर जो इंतखाबात करवाने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले साल जनवरी में तहलील की थी और मई तक हर सूरत में वो इंतखाबात होने थे, लेकिन 90 रोज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा सका। इसी वजह से मैंने कहा कि अब वो दौर नहीं है, अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का दौर नहीं है, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, ये वो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिनको अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने की जरूरत नहीं है। इनके फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होना है। मुझे हमेशा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की वो बात याद आ जाती है जो उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी बार काउंसिल में की थी कि क्या हमें अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने की जरूरत है। जो आजाद जज होता है, बहादुर जज होता है, आइन पसंद जज होता है, उसके फैसलों पर ऑटोमेटिकली अमल दरामद होता है। रियासत के लिए नामुमकिन है कि उसके फैसलों पर अमल दरामद ना करे। यानी उन्होंने ये पैगाम दे दिया था कि अगर कहीं पर ये प्लानिंग हो रही है कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये प्लानिंग की हद तक ही महदूद रहेगी, इंप्लीमेंट इसके ऊपर नहीं हो सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हम हर सूरत अमल दरामद होगा। अलबत्ता अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये डेवलपमेंट आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इन चैम्बर इस मामले को टेकअप किया। डीजी लॉ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने कानूनी ब्रेन्स हैं उनको इस फैसले की आसान अल्फाज में तशरीह समझा दी। इसका मतलब वो जो एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जमा करवाई गई थी उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तसल्ली करवा दी है इलेक्शन कमीशन की। अब कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो हर बंदा यही कह रहा था, हर अदालती रिपोर्टर ये कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अपने गले के ऊपर फंदा डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरखास्त दायर करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये ख्याल था कि शायद इस मामले को लंबे अरसे तक पेंडिंग करवा दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की छुट्टियां हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो ऑथर हैं इस फैसले के, जिन्होंने ये जजमेंट लिखी थी और सुनाया भी था फैसला, काजी साहब ने उनको कहा था कि आप ये फैसला सुनाएं। उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तसल्ली अलबत्ता करवा दी है। अब या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे या फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे देंगे। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।